Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of a direct indirect speech grammar. In the previous lecture, we studied the basics of direct and indirect speech and we were going to continue with exercise number 7a. So let's continue with the exercise number 7a and let's see what the exercise has it for us. हमारे लिए क्या है ये exercise देखते हैं. Number one, you said he is dull like dishwater while working in the office. First of all, when you are trying to convert this type of sentence, जब आप ये ऐसा type का sentence convert करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? You will understand that you will remove the comma and double inverted commas. Number one, I am writing it on the screen right now. You said. Now, when you are placing something in replacement of the comma and double inverted comma, what will you place? You will place that. Okay. You said that. Comma और double inverted comma की जगह पे हम क्या लगाएंगे बेटा? That लगाएंगे. Okay. ये तो हमको पता ही है. You said that. Now, what we will do from here on? हम क्या करेंगे अब double inverted commas में? In the double inverted commas, we will convert all the words which are of the present tense to the past tense. Listen to me very carefully. While you are converting the verbs to the past tense, see the things which are to be converted in the past tense, like is, am, are, was, were, okay, will, shall. These all are the helping verbs which we have studied earlier. Is, am, are. This is a helping verb, right? तो हम क्या करेंगे बेटा? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, ये सारे जो वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले वो तो हम देखेंगे और उसको अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो कन्वर्ट करेंगे पास्ट टेंस में. अगर वो पास्ट टेंस में है, अगर वॉज, वेयर है तो इट विल बी कन्वर्टेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस विच इज हैड बीन. ओके. विल होगा तो वुड हो जाएगा, शैल होगा तो शुड हो जाएगा. क्लियर? तो यहां पे हम क्या कन्वर्ट करेंगे बेटा? ही वॉज. ओके. ही वॉज डल लाइक डिश वाटर while working in the office. That is the continuation. See, this is of no use of us. हमको खाली क्या करना था? इसका हमको करना था was. लेकिन एक बात ध्यान रखिए. See very clearly, the double inverted commas will be removed. As I said in the previous lecture, मैंने previous lecture में आपको बताया था, the double inverted commas will be removed. Okay, the comma, double inverted commas will be removed totally, and it will be a full stop will be placed at the place of the ending of the sentence. ठीक है? जब सेंटेंस खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप रख देंगे. लिसन टू मी, कॉमा और डबल इंडेड कॉमास की जगह पे आप दैट रखेंगे और फाइनली फुल स्टॉप रखेंगे. ओके. हर एक सेंटेंस में आपको ये चीज फॉलो करनी है कि कॉमा और डबल इंडेड कॉमा की जगह पे कुछ ना कुछ तो आएगा. ओके. तो दिस इज द फर्स्ट आंसर. वैसे ही the second answer is I'll speak the answer. I'll not be able to write because so much the sentences are many, right? 14 sentences है हमारे पास. So I'll speak the answer. Number 2, she said. Now while we are converting, she said nobody is appreciating the dog's dinner. So what we will do? Sorry, my camera stuck. Okay. She said, अब कॉमा और डबल इंड कॉमास की जगह पे हम लगा देंगे that, right? She said that nobody, इसका क्या कर देंगे हम? Was. Nobody was appreciating the dog's dinner. Now you will ask me, sir, appreciating, isn't it a verb? Okay, isn't it a verb? So why don't we convert the verb? See beta, when we are converting anything into past tense, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक चीज आपको ये समझनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी कन्वर्टेड टू सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. देखो, द मेन वर्ब्स आर स्टेइंग विथ क्लियर. मेन वर्ब्स तो क्लियर ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके आगे हम प्रेजेंट का पास्ट करते हैं. जैसे इसका हमने कर दिया was, ठीक है, तो वर्ब्स विल नॉट चेंज. वर्ब कब चेंज होंगे? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में डज, डिड, सॉरी डू, डज लिखा होगा या तो प्लेज लिखा होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड टू सिंपल पास्ट टेंस. तो हम डू डज का डिड कर देंगे और प्लेज का कर देंगे हम प्लेड. ओके. तो ये आपको ध्यान रखना है. वैसे ही नंबर 6 में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक थोड़ा ट्विस्ट है. चलिए देखते हैं. नंबर 3, he said Peter is composing a patriotic song for the college function. क्या करेंगे बेटा? He said that Peter was composing a patriotic song for the college
फंक्शन। क्लियर? आगे बेटा नंबर 4 देखिए, आई सेड कृष्णा इज स्पीकिंग द ट्रूथ एज ही इज एट द डेस्क डोर। तो आई सेड दैट, यहाँ पे हम दैट तो लगाएंगे ही, कृष्णा इसका क्या कर देंगे हम, वॉज, कृष्णा वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ एज ही, वापिस से इज आया तो वापिस से वॉज कर देंगे, एज ही वॉज एट द डेस्क डोर। ओके, नंबर 5, दे सेड दैट अ पुअर फेलो। अब हैज हैव का मैंने क्या बोला था, हैज हैव विल बी कन्वर्टेड टू हैड। ओके, हैज हैव विल बी कन्वर्टेड टू हैड। अ पुअर फेलो had been looking for a dead man's diamond shoes to get rid of his poverty. Now you will ask me, सर ये get जो है उसका got नहीं हो जाएगा? get का got नहीं करेंगे बेटा, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? Because this is not an actual verb. This is known as an infinitive. Okay, this is known as an infinitive. भाई verb जब infinitive होते हैं, to plus verb, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जब ऐसा आता है तो वो वर्ब का अस्तित्व ही खो देता है। ठीक है, तो हम टू गेट का टू गॉट नहीं करते हैं, टू गेट का टू गेट ही रखते हैं, क्योंकि वो इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म ही नहीं होता है, वो भले आपको वर्ब लगे लेकिन वो वर्ब होता ही नहीं है। ओके, नंबर 6 देखते हैं, मिस टेलर सेड। अब यहां पे मैंने आपको बताया था ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है देखते हैं। मिस टेलर सेड दैट टुलिप, अब इसका क्या हो जाएगा, वॉज, टुलिप वॉज टेलिंग हिज कोच वेयर हिज शू। यहां पे देखो पिंचिस लिखा है, पिंचिस लिखा है, तो क्या कर देंगे हम, क्या करेंगे नहीं पता। देखो पिंचिस जो है वो क्या है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है ना, है कि नहीं। पिंचिस ईएस लगाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताई थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई ई एस। तो यहाँ पे देखो वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो है पिंच, उसके पीछे एस ई एस आई ई एस लगा हुआ है, राइट। तो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच विल कन्वर्ट टू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पिंचिस का हो जाएगा पिंचड। ओके, PINCHED। Miss Taylor said that Tulip was telling his coach where his shoe pinched. Okay, number 7, you said Solomon works hard। भाई यहाँ पे works जो है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि नहीं। पीछे एस दिखा आपको, वर्ब के पीछे एस दिखा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में, वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या, वर्क, वर्कड। आ गया, यू सेड दैट सोलोमन वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। आप पूछेंगे सर अचीव नहीं करेंगे ना, आगे टू प्लस अचीव है उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। नंबर 8, मिस डॉन वॉकर सेड टाइटैनिक इज डेड इन द सी। तो मिस डॉन वॉकर सेड दैट टाइटैनिक इज डेड इन द सी। सर आपने इज क्यों बोला, इसका वॉज नहीं करेंगे बेटा। एक ट्विस्ट है यहाँ पे, ट्विस्ट क्या है पता है, टाइटैनिक इज डेड इन द सी, ये सेंटेंस जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है। टाइटैनिक अब सी में है, वो बाहर थोड़ी आने वाली वापस। टाइटैनिक इज डेड तो टाइटैनिक इज डेड, पता चला। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब दुनिया की सच्चाई, ठीक है, वो जो होती है वो कभी चेंज होती नहीं। मतलब टाइटैनिक गया तो गया, अब कुछ नहीं हो सकता उसका। टाइटैनिक इज डेड इन द सी, तो मिस डॉनवॉकर सेड दैट टाइटैनिक इज डेड इन द सी। जब यूनिवर्सल ट्रूथ आए, यू विल नॉट कन्वर्ट प्रेजेंट टेंस इनटू पास्ट टेंस। ऐसी बातों में जो आपको यूनिवर्सल ट्रूथ लगे, उसकी एक्सरसाइज हम पीछे करेंगे, लेकिन ऐसी बातों में जब यूनिवर्सल ट्रूथ आपको लगे तो दैट टेंस विल नॉट बी कन्वर्टेड। डेविड सेड ही इज बिहेविंग लाइक अ डॉग विद 2 days आफ्टर गेटिंग द गोल्ड मेडल। भाई डेविड सेड, सबसे पहले तो दैट लगा देंगे हम, कॉमा डबल एंड कॉमर्स की जगह पे दैट लगा देंगे। ओके, डेविड सेड दैट ही, इसका क्या कर देंगे, वॉज, ही वॉज बिहेविंग लाइक अ डॉग विद 2 days आफ्टर गेटिंग द गोल्ड मेडल। कुछ नहीं करना है, इसका वॉज करना है बस। नंबर 10, आई सेड कॉमा डबल एंड कॉमा की क्या कर, दैट, आई सेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स। भाई आर का क्या कर देंगे हम, वेयर। क्यों वेयर, आर का हम वेयर क्यों करेंगे बेटा, देखो आर प्रेजेंट टेंस, वेयर पास्ट टेंस है ना। प्लूरल नाउन्स के लिए, प्लूरल नाउन्स के लिए हम जो उसके साथ वर्ब यूज होता है वो भी प्लूरल होगा, यस और नो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स के साथ आर लगा दिया हमने, स्टूडेंट्स वेयर कर देंगे हम, वेयर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द टीचर। नंबर 11, मिस सुजैन सेड दैट
अब कॉमा डबल कॉमा, आपको पता चल गया ना दैट, तो मैं आप अब नहीं बताऊंगा। मिस सुजन सेड दैट मिस्टर ओक, इसका क्या कर देंगे हम, वॉज खत्म। मिस्टर ओक वॉज ड्रिंकिंग कोका कोला विथ हिज फ्रेंड्स। सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है कि आपको क्या क्या चीज चेंज करनी है इसमें। नंबर 12, रिचार्ड सेड एडवर्ड हैज क्रॉस द रोड, भाई हैज का हम कर देंगे हैड, ओके, हैज विल बी कन्वर्टेड टू हैड। एडवर्ड हैड, रिचार्ड सेड दैट एडवर्ड हैड क्रॉस द रोड बिफोर द अराइवल ऑफ बस। नंबर 13, सैम सेड देयर इज एन ओपन डोर। सबसे पहले तो इसका क्या कर देंगे हम, आर, है कि नहीं, इसका हम कर देंगे आर, सॉरी इसका हम कर देंगे वॉज। सैम सेड देयर वॉज एन ओपन डोर फॉर द हार्ड वर्किंग पीपल इन दिस इंस्टीट्यूट। दिस का क्या करेंगे हम, सर ये तो आपने बताया ही नहीं। दिस का हम कर देंगे दैट, THAT, दैट, ओके। क्योंकि हम ये इंस्टीट्यूट की जब सैम बात कर रहा है तो सैम बोला था ये इंस्टीट्यूट के बारे में, हम जब सैम को बोले कि सैम ऐसा बोला था तो वो इंस्टीट्यूट के बारे में बोला था, राइट, तो दिस का हम कर देंगे दैट। Number 14, Robin said that the soldier was dead as a doornail in the story. Okay, एक्सरसाइज 7B हम नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा पेज मेरा फटा हुआ है, तो एक्सरसाइज 7B के जो 4 सेंटेंस है वो हम करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 7B की 9, 10, 11, 12 ऐसा नंबर डाल देंगे, ओके, चलेगा। The commander said his army will have achieved all the targets planned by them. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ना, will का कर देंगे हम would, will का would। The commander said his army would have achieved all the targets planned by them. आप बोलेंगे सर ये have का had नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था in the previous lecture I told you that when we are having has, have, when we are having have with will के साथ जब have आता है तो हम will चेंज करते हैं, have को चेंज नहीं करते हैं, ओके। नंबर 10, the driver said that they would have been to Norman Point before 5 o'clock. Okay, number 11, your father said that his daughter would never attend a dog and a pony show. Number 12, the gardener said that she will be treating with me like mud under the lotus. So gardener said that she would be treating with, गार्डनर ने तो अपने खुद की बात की है ना, तो यहाँ पे मी का क्या कर देंगे हम, गार्डनर तो लड़का है तो him लगा देंगे, yes or no। the gardener said she would be treating with him like mud under the lotus। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, हमारे सामने एक्सरसाइज नंबर 7C आ गई है। एक्सरसाइज नंबर 7C देख लेते हैं। She said he gave a dog a bad name। अब देखो यहाँ पे बेटा आपको यहाँ पे पास्ट टेंस वाले सेंटेंसेस दिखेंगे। अब जब आपके पास पास्ट टेंस वाले सेंटेंस आए, डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर पास्ट टेंस आए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस ही गेव अ डॉग, तो गेव क्या है बेटा, गेव तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइट, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। मैंने आपको क्या सिखाया था, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है इट विल बी कन्वर्टेड टू हैड प्लस V3। वर्ब सेकंड फॉर्म विल बी कन्वर्टेड टू हैड प्लस V3। V3 क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, जैसे गिव। चलिए रिकॉइल करते हैं, याद करते, रिमेंबर करते हैं, गिव का 3 फॉर्म कौन कौन से हैं, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी गिव, गेव, गिवन, ठीक है, गिव, गेव, गिवन, तो ये 3 फॉर्म्स हैं वर्ब के। शी सेड दैट ही, अब क्या करेंगे यहाँ पे, गेव की जगह पे हम रख देंगे गिवन और उसके आगे हैड। शी सेड दैट ही हैड गिवन अ डॉग अ बैड नेम। ओके ओके, मैंने आपको और एक चीज सिखाई थी, वॉज वेयर विल बी कन्वर्टेड टू हैड बीन, ठीक है, हैड बीन, वॉज वेयर विल बी कन्वर्टेड टू हैड बीन। तो आप क्या करेंगे, जहां भी वॉज वेयर आए उसको हैड बीन कर दीजिए। दे सेड, नंबर 2, दे सेड शी वॉज सेलिंग हर सोल टू द डेविल, तो दे सेड दैट शी हैड बीन सेलिंग हर सोल टू द डेविल। नंबर 3, इसमें भी वॉज आ गया, इसमें भी आपको हैड बीन करना है, कर देंगे। आई सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग। नंबर 4, सेम सेंटेंस है, देखो वॉज आ गया। एडविन सेड दैट सैम
हैड बीन ड्रीमिंग अबाउट अ वैगर राइडिंग ऑन हॉर्सबैक। अब सर हैड बीन आए तो क्या करना है? नंबर 5, हर फादर सेड हिज बुक्स हैड बीन टेकन बाय टुलिप। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम रख दीजिए, हैड बीन को चेंज करना नहीं है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट, नो चेंज। हर फादर सेड दैट हिज बुक्स हैड बीन टेकन बाय टुलिप, कोई चेंज करेंगे नहीं यहां पे। ओके, नंबर 6 देखिए, सॉरी स्टूडेंट, नंबर 6 देखिए। अच्छा, नंबर 6 में क्या है भाई? 8। अब ये 8 क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इट इज कन्वर्टेड टू हैड प्लस V3। मिस्टर ब्रूस सेड दैट डेविड हैड ईटन लाइक अ हॉर्स आफ्टर हिज रिकवरी फ्रॉम इलनेस। गॉट का भी वही है, गॉट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गेट, गॉट, गॉटन, गॉट। गॉट का थर्ड फॉर्म भी गॉट ही होता है, ठीक है? तो उसके आगे आपको हेड लगा देना है बस। मिस बेरी सेड दैट ही हैड गॉट द अवार्ड बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट। प्रेड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्रे, प्रेड, प्रेड, प्रेड ही रहता है, ठीक है? तो उसके आगे हेड लगा दीजिए। एंडी सेड दैट शी हैड प्रेड फॉर हर ब्रदर्स बेटर हेल्थ। अब यहाँ पे आ गया वेयर, उसमें क्या है, डरना नहीं है, हेड बिन लगा दीजिए, खत्म। Albert said that the beggar near the temple had been not choosing between $1 and a pound। क्या had been not choosing प्रॉपर है? नहीं सर, प्रॉपर कहाँ है? had been not choosing थोड़ी लिखते हैं, had not been choosing लिखते हैं, ठीक है? not जो है वो had के बाद लिखते हैं हम, has, have, had, उसके बाद exactly not लिखते हैं हम। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे? the beggars near the temple had not been choosing between $1 and a pound। नंबर 10, won, won का had won, क्लियर। नंबर 11, ब्रोक, ब्रोक का क्या हो जाएगा? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। The news reporter said that the fire had broken out after 12 o'clock before the arrival of the minister। Number 12, Franklin acted, had acted, ठीक है? had acted इजी है। was का कर दीजिए had being, यहाँ पे बात खत्म। I said that after 80 years Mr. Lawrence had been living on borrowed time, was had been कर दीजिए, ओके। गाइडेड, had guided, was had been कर दीजिए यहाँ पे, was had been कर दीजिए यहाँ पे। failed, had लगा दीजिए, had failed। was तो had been कर दीजिए आगे। got तो had got कर दीजिए, आ जाएगा। ओके, चलिए अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूं बेटा कि आप पर्सन कैसे चेंज करते हैं। देखो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। अब ट्रिक क्या है? देखो जब आपको आगे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का नाम दिया होगा, दोनों का स्पेसिफिक पता दिया हो, ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई और यू हम चेंज करते हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूं आई कैसे चेंज करते हैं, ठीक है? यहां पे बोल कौन रहा है बताइए? ये सेंटेंस बोल कौन रहा है? ये सेंटेंस बोल रही है कोई लड़की, शी। ओके, ये सेंटेंस बोल रही है कोई लड़की, शी। तो अब लड़की बोल रही है, तो वो जो बोल रही है वो अपने बारे में बोल रही है। आई हैड डन माई ड्यूटी फॉर माई फैमिली एंड माई सेल्फ, ठीक है? तो वो अपने बारे में बात कर रही है। तो हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम हमारी बात थोड़ी करेंगे, वो हम लड़की की बात करेंगे। समझ में आया बेटा? लड़की बोल रही है, ये सेंटेंस लड़की अपने बारे में बात कर रही है। तो हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम अपने बारे में थोड़ी बोलेंगे, हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे ना, वो लड़की के बारे में बोलेंगे। इसका मतलब कि डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर आई, माई, 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 माई सेल्फ, ये सारे जो वर्ड हैं, ठीक है, आई, मी, माई सेल्फ, माई, ये सारे जो वर्ड हैं वो चेंज हो जाएंगे वो लड़की के जेंडर के ऊपर, राइट? तो लड़की है तो मतलब शी में चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आई का हो जाएगा शी, माई का हो जाएगा हर, माई का हो जाएगा हर, और माई सेल्फ का हो जाएगा हर सेल्फ। ओके, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? शी सेड आई हैड डन माई ड्यूटी फॉर माई फैमिली एंड माई सेल्फ। तो क्या करेंगे हम? चलिए ट्राई करते हैं आंसर। शी
said that, इतना समझ में आ गया, she said that। अब I की जगह पे हम क्या रखेंगे, जो बोलने वाला है, कौन बोलने वाला है, लड़की बोलने वाली है, तो I की जगह पे हम रखेंगे लड़की का जेंडर, लड़की है ना she, that she had done, my का क्या कर देंगे हम, her duty, ये बड़ा कर देते थोड़ा, she had done her duty for my family बोला है उसने, तो उसकी फैमिली, तो her family, and myself, तो उसने बोला है मेरा, तो हम बोलेंगे उसका, and herself, ठीक है। she said that she had done her duty for her family and herself। आंसर देखना है, नीचे आंसर वही है, देखिए, she said that she had done her duty for her family and herself। ओके, ये समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया, ओके। और एक बात, अब अपने शी का एक ही का भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे he said I had been working for my future, my friends and myself। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो पहले तो वर्ब आप चेंज करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे तो हैड डन लिखा ही है, तो पास्ट परफेक्ट ही है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी रहता है, ठीक है, तो वो तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको आना है प्रोनाउंस पे, मतलब आई, माई, माई, ठीक है, उसको आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे बोल कौन रहा है भाई, ही बोल रहा है, कोई लड़का बोल रहा है, तो आई की जगह पे हम रख देंगे ही, ठीक है। माई की जगह पे रख देंगे हिज, और माई सेल्फ का हो जाएगा हिमसेल्फ, ओके, क्योंकि वो अपनी खुद की बात कर रहे हैं, तो हम जो इनडायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे हैं, तो उसकी बात करेंगे, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम। अच्छा, इसको टेक्निकल वर्ड्स में बोला जाए तो वी आर कन्वर्टिंग द डबल इनवर्टेड कॉमास, वी आर कन्वर्टिंग द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस फ्रॉम द डबल इनवर्टेड कॉमास इनटू थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू द जेंडर, ओके, अकॉर्डिंग टू द जेंडर। टेक्निकली ऐसा बोला जाता है, लेकिन मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको बताया। टेक्निकली ऐसा बोला जाता है कि व्हाइल द रिपोर्टिंग वर्ब इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, on that basis we will convert the I or the first person, whichever it is in the double inverted commas, into the third person according to the gender of the subject of the reporting verb। समझ में आया हिंदी में, वो तो मैंने समझाई दिया आपको। तो डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आई, माई, माई, माई सेल्फ आता है, फर्स्ट पर्सन आता है, वो कन्वर्ट करना है हमको ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीकर। कौन बोल रहा है, ही बोल रहा है, यहाँ पे कौन बोल रहा है, ही बोल रहा है, तो उसके बेसिस पे, उसके जेंडर के बेसिस पे हम कन्वर्ट कर देंगे। आई को कन्वर्ट कर दिया ही, माई को कन्वर्ट कर दिया ही इज माई को, ही इज माई सेल्फ का हिम सेल्फ, ओके। और एक सेंटेंस आ गया भाई, जिल सेड, तो जिल कौन है, लड़की है, जिल गर्ल है, तो मतलब अब समझ में आ गया आपको क्या करना है, राइट। तो आई का शी कर देंगे हम, माई का हर कर देंगे हम, माई का हर कर देंगे। तो जिल सेड आई हैड बॉट माई मनी बैक फ्रॉम माई फ्रेंड शॉप। तो जिल ने ऐसा बोला, ओके, मैं मेरे दोस्त को जाके बोल रहा हूँ भाई जिल ने ऐसा बोला था, जिल सेड दैट, उसने मनी बैग खरीदा उसके फ्रेंड के शॉप से, उसने खरीदा, शी हैड बॉट हर मनी बैग फ्रॉम हर फ्रेंड्स शॉप। ये चीज समझ में आई बेटा। अब ट्विस्ट लाते हैं हम, यू सेड है, सामने वाले को बोलते हैं यू सेड। अब आपने बोला कि भाई मैंने अपना होमवर्क अपने क्लास में कंप्लीट कर दिया होगा, ठीक है, आपने बोला, तो कुछ नहीं करना है यार, आई की जगह यू रख दीजिए, ओके, आई की जगह पे यू रख दीजिए, क्या कंफर्म, कोई टेंशन नहीं है। अब की आप सोचेंगे सर अब इसमें क्या कन्वर्ट करेंगे, हैं आई, माई, माई, इसका तो ही शी में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि आगे तो कोई लड़का लड़की पता नहीं है कौन है, यू है ना, तो यू में रख दीजिए, आई को कर दीजिए यू, विल का तो वुड करना ही है हमको, है, माई का हो गया योर, और माई क्लास इनटू योर क्लास। यू सेड दैट यू वुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क इन योर क्लास, ओके। वैसे ही दे, तो सर दे में कैसे पता करेंगे दे में कैसे पता करेंगे कि कौन सा जेंडर है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अंदर डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर जो भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है, उसको फर्स्ट पर्सन को कन्वर्ट कर दीजिए दे में। आगे क्या है, सब्जेक्ट, दे सेड, तो वो लोगों ने बोला, 5 जन ने एक साथ बोला कि वी हैव डन आवर ड्यूटी, भाई हमने हमारी ड्यूटी कर दी है, ठीक है। वो बात मैं अगर दूसरे को बताने जाता हूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, भाई वो लोगों ने बोला था कि वो लोगों ने उनकी ड्यूटी
कर दी है, ठीक है। वो लोगों ने बोला था कि वो लोगों ने उनकी ड्यूटी कर दी है, कर दी थी। दे सेड दैट, वी का क्या कर दिया हमने, दे। हैव का तो हैड करना ही है, आवर का हो जाएगा देयर ड्यूटी। ओके, आ जाएगा बेटा। चलिए, आपके स्क्रीन के ऊपर मैं एक्सरसाइज नंबर 7D रख रहा हूं मिनिमाइज करके। टोटल 15 सेंटेंसेस हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे पूरे आपको एक्सरसाइज दिखाई दे। एक्सरसाइज नंबर 7D, टोटल 15 सेंटेंसेस है यहाँ पे। अच्छा, और छोटा करना पड़ेगा, चलिए ठीक है। ये आ गए आपके स्क्रीन के ऊपर 15 सेंटेंसेस, 1 to 15। अब आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ही खींच लीजिए, लिखने कहाँ बैठेंगे, स्क्रीनशॉट ही खींच लीजिए, ठीक है। मैं 10 सेकेंड्स आपको देता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। आपको ये एक्सरसाइज 7D ट्राई करनी है, और नेक्स्ट टाइम हमारे जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वो नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस दिस एक्सरसाइज नंबर 7D एंड विल मूव फर्दर। व्हाट इज योर होमवर्क? योर होमवर्क इज एक्सरसाइज नंबर 7A, 7B वाले 4 सेंटेंस, 7C और 7D, इतना आपके फेसबुक में होना ही चाहिए। ओके, आशा करता हूं कि आपने ये लेक्चर के अंदर कुछ समझ लिया होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कुछ आपको आ गया होगा। ओके, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय फ्रॉम नाउ, बाय बाय फॉर नाउ, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।